Good morning, all the students of the BSc first year classes. I was discussed into the back-to-back lectures to the cell organelles and different kinds of the organelles, just like to the plasma membrane, mitochondria, Golgi complex and reticulum. We just studied into the previous lectures. So that today's topic is the new organelles of the cell. This is a very important, essential and help into the protein synthesis. Now is called to the ribosomes. Ribosomes is the one of the organelles of the cytoplasm of the cell, because which are found into the both type of the cell, prokaryote and eukaryote, or the plant and animals as well, and nucleoprotein in nature. And what is the structure and the function of the ribosome, which are mentioned into the recently some of the times. So first of all, we are going now to their historical perspective, historical aspects, and what is the history of the ribosomes, discovery of the ribosomes, and into the plant and animal cell. In the structures, just to mention that to the prokaryotes and eukaryotes also have to the, but in the different, in the same 70s and 80s ribosomes, and the very essentially is in structure is the protein synthesis. The ribosomes play in the formation of to the protein synthesis. That is the site of the given to the site of the protein synthesis. So that first of all, to the what is their historical perspective, historical aspect, then the structure, ultrastructure, basic forms of the ribosomes, and after the finally is the structure of the ribosome. First of all, to the ribosome. Historical perspective, first is the ribosome were first noted into the plant cell by Robinson and the Brown in the 1953. In the 1953, the Robinson and the Brown, who is the first persons, is look to the rounded structure into the plant cell, that is got to the credit for that to their discovery. आज के चैप्टर में जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस से जुड़ा है और जो कि हम ऑर्गेनेल्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एक नए ऑर्गेनेल के साथ में फिर से उपस्थित हुए हैं आपको बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, तो जो कि राइबोसोम है। और राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेता है। ये हर प्रकार के सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, और यहाँ तक इवनली यहाँ तक कि ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अब यहाँ पे प्लांट यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के हिसाब से ये जो है 80s और 70s का पाया जाता है, और हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार का उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। लेकिन सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि किसने इसकी खोज की, कौन डिस्कवरर है और किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, और बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि क्या फंक्शन होता है और पहला डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में की। इन्होंने डिस्कवरी किया, राउंडेड स्ट्रक्चर को खोजा और देखा। In the secondly, we are going now to the George E. Palade in the 1955 observed in the animal cell. In the particularly, you are a study to the zoology, and in the zoology for the animal, the who is the person is play to the important role for the perspective of the discovery. So that to the George E. Palade, G.E. Palade बोला जाता है, in 1955 में एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया, देखा इसको कि एक प्रकार की राउंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेती है। लेकिन राइबोसोम एज अ नेम किसने दिया, किसने दिया, तो वो अलग एक पर्सन है। वो उस पर्सन का नाम, टर्म जिसको बोला जाता है
कि टर्म किसने दिया राइबोसोम का। राइबोसोम का जो टर्म दिया गया है वो आरबी रॉबर्ट्स के द्वारा दिया गया है, आरबी रॉबर्ट्स इन 1958। मतलब क्रमशः, मतलब सेक्वेंसली इन द डिस्कवरी में आप 1953, then 1955, and finally for the terminology which year is represented to the 1958। क्रमशः जो है इस प्रकार से डिस्कवरी इसकी हुई है। तो आपने देखा रॉबिन्सन ब्राउन, जी पैलाडे एंड आफ्टर दैट आरबी रॉबर्ट्स ने इसकी खोज में, इसकी टर्मिनोलॉजी में, इसके रिसर्च में बहुत ज़्यादा मेहनत किया और आपको एज ऑर्गेनिज्म के रूप में इसको प्रस्तुत किया। अब सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आर द थिंग्स इज दैट टू द व्हाट इज द राइबोसोम, व्हाट अबाउट टू द राइबोसोम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टू द राइबोसोम। राइबोसोम एक्चुअली में होता क्या है। हम सबसे पहले राइबोसोम को डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर जानेंगे कि उसका क्या फॉर्म होता है। तो समझिए आप, डेफिनेशन के माध्यम से मैंने लिखा है, एक अंडरलाइन सेंटेंसेस को मैंने अंडरलाइन किया है, आप देखें। द राइबोसोम आर स्मॉल, डेंस, राउंडेड एंड ग्रेनुलर पार्टिकल्स ऑफ द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, फैक्ट है, जिसके आधार पे हम ये प्रूव करेंगे कि राइबोसोम्स है वो क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा से यहाँ पे समझते हैं राइबोसोम क्या है। अब देखिए यहाँ पे राइबोसोम का एक्चुअल नेम क्या है। राइबोस, एक शब्द राइबो है, दूसरा सोमा है। दे आर द वन राइबोसोम्स इज द फॉर्म, दे आर द टू वर्ड्स, द राइबो एंड द सोमा। राइबोस इज इंडिकेटिंग टू द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज द राइबो एंड सोमा इज द बॉडी। तो यहां पे देखते हैं राइबोसोम्स आर स्मॉल, वो सेल में, पूरे सेल में जो सेल होता है, यहां पे आपको हम बता दें, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, वो उसके पूरे साइटोप्लाज्म में या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे उपस्थित होता है, तो वो पूरे साइटोप्लाज्म में दिखाई पड़ता है। तो वो क्या होता है, स्मॉल होता है। अब जब हम रिवील्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसमें हमें ये बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसको स्मॉल, डेंस, क्योंकि इसकी जो संख्या होती है साइटोप्लाज्म में वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, इसलिए ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डेंस होता है, घनत्व इसका ज़्यादा होता है, मतलब उसकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा होती है। फिर क्या है, दिस इज द राउंडेड स्ट्रक्चर। इसका कोई एक पर्टिकुलर क्या है, वो एक राउंडेड शेप है, बस स्फेरिकल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए इसको राउंडेड शेप बोला जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है क्या, राउंडेड एंड ग्रेनुलर। अब यहां पे क्या है, ग्रेनुलर पार्टिकल ऑफ द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आपको समझना पड़ेगा, ग्रेनुलर इज द ग्रेन्यूल्स, हिंदी में कड़िका बोलते हैं, इस प्रकार का पार्टिकल है किसका। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखें, पार्टिकल्स ऑफ द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब राइबोस टाइप ऑफ द ग्लूकोज, न्यूक्लियस में राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस है, राइबोस टाइप ऑफ द, इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलके बना हुआ जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, वो ग्रेनुलर पार्टिकल्स है, उसी को राइबोसोम बोलते हैं। उसका जो बेसिकली रूप से जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का क्या मतलब है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट किया है, जैसे कि इसका जो स्मॉलेस्ट है 70s है, तो इसके साथ साथ में प्रोटीन भी होना चाहिए। तो ये देखिए
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन तो साथ में है ही है, इसके साथ साथ में क्या है, राइबोस का मतलब होता है कि राइबोस ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यहां पे पाया जाता है। और ये न्यूक्लियो का इंडिकेशन क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियस के अंतर्गत ये पाया जाता है, क्योंकि जो इसका जो प्रेजेंस होता है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, उसका जो प्रेजेंस होता है, इसका जो निर्माण होता है, वो हमारे न्यूक्लियस में सबसे होता है, और न्यूक्लियस के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाके वहाँ पे पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में, वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ द पॉलीराइबोसोम, दैट इज द मेक टू द स्ट्रक्चर एंड टू द far to the site of the protein synthesis, after that to the information which are taken by to the, there are the three kinds of the राइबोसोम्स। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि इसमें राइबोस टाइप का शर्करा वो जो है ग्लूकोज होता है, और उसकी प्रोटीन होती है, और इसके आधार पे इसका फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि आरएनए का फॉर्मेशन, जो क्योंकि यहाँ पे ये राइबोसोमल आरएनएज है, क्योंकि यहाँ पे ये आरएनए जिस प्रकार से बना होता है, जो यहाँ पे ग्लूकोज होता है, उसी ग्लूकोज इसका भी निर्माण होता है। इवेंटली ये कहें कि ये जो है न्यूक्लियस में बनने वाला जो है सबस्टांस है, वो बाद में इसके डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने कहा कि द राइबोसोम्स आर स्मॉल डेंस राउंडेड एंड द ग्रेनुलर पार्टिकल्स ऑफ द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। सो राइबोज इज द पेंटोज glucose, and then the glucose which are combined to the protein and form to the specific structure of the ribosome, which have to the itself into the dense granular rounded and to the rounded particles of the ribonucleoproteins. So this is the definition of the ribosome। इसका एक एस्पेक्ट है इसको समझने के लिए कि कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे हम जानेंगे, किस प्रकार से हम समझेंगे कि राइबोसोम एक्चुअल में होता क्या है। जब हम अभी न्यूक्लियस की बात करेंगे, उसमें न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, तो वहाँ पे फास्फेट ग्रुप की बात आएगी, पेंटोज शुगर की बात आएगी। तो वही पेंटोज शुगर यहाँ पे भी पाया जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के पेंटोज शुगर होते हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। यहाँ पे राइबोज टाइप का है, उसके साथ में प्रोटीन है, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला ये है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो डिफिनीशन के आधार पे हमने ये समझा कि ये जो है किस प्रकार का होता है, किस नेचर का होता है, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। अब आगे हम चलते हैं। इट्स डायमीटर इज अबाउट टू द 150 to 200 एंगस्ट्रॉन, मतलब इसका जो लेंथ होगा, विड्थ होगा, मतलब डायमीटर की बात करें हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो वो 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉन के बीच में ये होता है। अब आप बात करते हैं, हमने कहा कि ये हर प्रकार के सेल में पाया जाता है, लेकिन ये जो these are the found into the all type of the cell, the prokaryote and the eukaryote, but into the different in position, different in the condition, different in the scenario, because these are attached to the either membranes or the freely in the cytoplasm, as you mentioned that into the chloroplast, mitochondria and to the cytoplasm. Chloroplast, the granules may be found either in the free state in the matrix of the chloroplast, mitochondria and the cytoplasm. There are the three basic regions, organs are the things which are have to the ribosome into the free in the state, mitochondria in the mitochondrial matrix, in the chloroplast and to the cytoplasm, freely in the cytoplasm, which are present to the ribosome, and that stay into the protein synthesis. But in the either situation, condition and the scenario which are present, that is remain attached to the outside of cytoplasmic membranes. Outside of the cytoplasmic membranes, like to ER and the nucleus. ER, the nucleus, that is have to the ribosomes, and that's called to the remain attached in the state. In the previous lecture, that is the
I was discussed about to the endoplasmic reticulum, and the endoplasmic reticulum is the two types on the basis of the still remain present of the ribosomes on the membranes of the ER, so that to the if the ER and the nucleus which are contained to the ribosome on the their membranes, that is called to the still remain to the attached form, and if the ribosome which are present into the freely into the cytoplasm, that is called to the free state into the mitochondrial matrix, chloroplast, and to the cytoplasm of the cell. So that there are the two types of the conditions. There are the two conditions for that ribosomes is present into the cell. तो दो प्रकार की कंडीशन को हमने देखा कि जिस प्रकार से राइबोसोम जो होता है वो उपस्थित होता है, जो कि ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ग्राउंडेड स्ट्रक्चर है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। और उस हिसाब से तो मैंने जैसा पहले भी बोला कि ये अलग अलग सिचुएशन कंडीशन इसकी होती है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो राइबोसोम है वो यहाँ पर पाया जाता है। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम दो प्रकार की सेल है, तो दो प्रकार के फॉर्म में पाया जाएगा। तो दो प्रकार के सेल में है तो दो प्रकार के फॉर्म में पाए जाने के आधार पे इसको टू टाइप्स हमने लिखा है, X70S एंड 80S। थोड़ा यहाँ पे हम विस्तार में समझेंगे इन डिटेल, विच आई विल डिस्क्राइब इन द फॉर द 70S, which are also called to the prokaryotic ribosome, because these are the found in the prokaryotic cell. So that is also called to the prokaryotic ribosome, and this is the type is the 70S. What is the meaning of the yes? What's the meaning of the yes? Yes is indicating of the both types, 70S and the 80S, S and AS. S is the Svedberg unit. The person is the Svedberg, which are indicating to the sedimentation coefficient, so that the Svedberg unit, तो 70S और 80S को यस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्वेडबर्ग यूनिट को रेफर करता है, या यूं कहें कि स्वेडबर्ग ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको जो है अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 80S यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसलिए यूकैरियोटिक राइबोसोम भी बोला जा सकता है। और तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला राइबोसोम होता है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि दो प्रकार के आपके सामने राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। लेकिन 70S और 80S का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो इसका केमिकल कंपोजिशन यूं कहें तो वो अलग अलग होता है। वो अलग अलग इसमें राइबोसोमल आरएनएज होती हैं और उसके साथ में प्रोटीन होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे 70S। 70S राइबोसोम्स इज फाउंड इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल इन द स्टेट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये फ्री स्टेट में पूरे सेल में पाई जाती हैं और 70S टाइप की होती हैं। स्वेडबर्ग यूनिट में थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब देखिए 70S को फर्दर जब डिवाइड किया जाता है, वो 70S को फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो 30 + 50S में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम कहें इस प्रकार से जब हम राइबोसोम के केमिकल पार्ट्स की बात करेंगे कि 70S में भी दो पार्ट है, 30S और 50S। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो 70S का फॉर्मेशन होता है। वेयर आर नॉट गोइंग इनटू द मैथमेटिकल एस्पेक्ट, अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखेंगे तो 80 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि वो 30 और 50S में उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा डायग्राम, क्योंकि ये क्या है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप का होता है, इस आधार पे हम ये देखेंगे कि ये क्या क्या है, कैसे बना होता है। देखिए हमने यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम बनाया। इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे, देखिए ये एक शेप ये है, एक शेप दूसरा ये है,
एक डायग्राम मैंने इससे ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, मतलब 70s में 2 सब यूनिट है और उस 2 सब यूनिट को हमको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को, राउंडेड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो कि आपस में ज्वाइंट है। तो एक देखे 30s, दूसरा 50s, और उसके साथ साथ में मैंने +P लिखा है। P मतलब प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया मैंने, ये प्रोटीन यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके केमिकल कंपोजिशन पे जाते हैं तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे प्रोटीन के। तो केमिकल कंपोजिशन में जब जाएंगे तो ये RNA प्लस प्रोटीन से बना है। अब यहाँ पे देखें राइबो, यहाँ पे आ जाइए, इसीलिए मैंने यहाँ पे केमिकल एस्पेक्ट जब आया तब समझाने का प्रयास किया कि क्या है RNA प्लस प्रोटीन। Ribose type of the glucose is found into the RNAs only, not in the DNA. Nucleic acid is the 2 types, DNA and the RNA is literally you know that very well. आप जानते होंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है और 2 प्रकार में एक DNA बोला जाता है, एक RNA बोलते हैं। DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, हम थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे बता के आगे चलते हैं। DNA डीऑक्सीराइबोज, DNA डीऑक्सीराइबोज एसिड, और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स के आधार पे है। फास्फोरिक एसिड है, फास्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है। देयर आर द 3 बेसिक कंपोनेंट एंड द constituents which are mapped together, which are going to the formation of to the nucleic acid. If the hydroxyl group, in the difference of the hydroxyl group, that is the only to the hydrogen is present, to the loss of the oxygen, that is called to the deoxy represented is represented in the DNA, and if the hydroxyl group present in their forms, that is called to the ribose. So that is a little bit differences, and that on the behalf of these differences is indicating to the deoxyribose nucleic acid and the ribose nucleic acid. तो 2 मतलब अभी आप जब केमिकल कंपोजिशन में जाएंगे, हम न्यूक्लिक एसिड जब आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियस के दौरान, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि जो फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, सॉरी जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज के जो दूसरा नंबर कार्बन एटम होता है उस पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो वो RNA होगा, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन लॉस कर रहा है वो तो DNA होगा। इसीलिए डीऑक्सी, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, और वहाँ पर अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में OH प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो राइबोज होगा। तो यहाँ पे देखें कि न्यूक्लिक जो हमारा राइबोसोम है, जो कि न्यूक्लिक एसिड मैंने बताया आपको कि जो कि डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे केवल RNA को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपने समझ लिया कि जो राइबोसोम का निर्माण हुआ है, द एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइबोसोमल RNAs plus some kinds of the protein is formed to the राइबोसोम। तो राइबोसोम का निर्माण RNAs प्लस प्रोटीन से हुआ है। तो देखें यहाँ पे इंडिकेट मैंने क्या किया है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये आपका RNAs हो गया, कौन सा RNA है, rRNA, और ये देखिए एक प्रकार की प्रोटीन है। ये तो दोनों जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इस डिफिनेशन के हिसाब से क्या कहा गया था कि स्मॉल डेंस और राउंडेड और ग्रेनुलर पार्टिकल्स किसका, राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का जो ग्रेनुलर पार्टिकल्स होता है, जो स्मॉल और डेंस राउंडेड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। तो इस केमिकल कंपोजिशन से ये पूरा डेफिनेशन जो है वो पूरा एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आधार पे हम आप देखें तो 2 टाइप हम बात कर रहे थे, 70s को रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है वो उसमें 2 सब यूनिट होती हैं,
30 और 50s, जिसको 70s बोला जाता है। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे दिखाया है, और 30s प्लस 50s। अब ये चूंकि क्या है, RNA प्लस प्रोटीन्स है, तो कुछ RNA यहाँ पर भी होंगी, कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी होगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे कुछ हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं 60s, 5.8s और 5s। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन हमने किया आपका कि और तो यहाँ पे देखिए 16 ईयर्स एंड 5 ईयर्स ये लार्ज सब यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और जो 30 ईयर्स होता है वो 5.8 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जब हम 80 ईयर्स के रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं तो यूकैरियोटिक में 23 ईयर्स, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, 5.8 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, इस प्रकार से। तो हम बैक टू बैक ये लार्जली को लेते हैं, तो 23 ईयर्स, 5.8 years and 5 years, and then only to the 18 years is present with the protein। तो सबके साथ में उसका सब यूनिट्स होती है, राइबोसोमल सब यूनिट होती है, और उसके साथ साथ में प्रोटीन होती है। दोनों प्रकार के राइबोसोमल जो हमारे सब यूनिट्स होती हैं उनका केमिकल कंपोजिशन इस आधार पे हुआ है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन इस आधार पे हुआ है, और इसी आधार पे तो जब हम इसकी हिस्टोलॉजी पे देखेंगे बहुत सारी थियरियाज दी गई हैं। उस थियरी के माध्यम से हम उसके डायग्राम को, उसके ग्राफिक्स को समझ सकते हैं। तो इस केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे ये दो सब यूनिट यहाँ पे आप देखिए, जैसा मैंने यहाँ पे 80s के लिए 40s प्लस 60s, अब इसमें आपको 100 होना चाहिए, लेकिन ये 80s है। ये यहाँ पे इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए इसमें हमने इसके कंपेरिजन इन द 80s, द 70s इज द स्मॉलर, देयर द सब यूनिट इज आल्सो स्मॉलर इन द पोजीशन, सो दैट to the structure and function of the ribosome, a structure, the type of the ribosomes is the two types, 70s and 80s, prokaryotic and eukaryotic, Svedberg unit, and there are the ribosomal subunit and the protein. And after that is goes to the sedimentation coefficient। यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, आप थोड़ा समझ लीजिए कि दो जो सब यूनिट्स होते हैं, दो ये अगर हम दो सब यूनिट की बात करें जुड़े हैं तो कैसे होंगे। कुछ कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन यहाँ पे उपस्थित होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस और द मैग्नीशियम आयंस, दैट इज प्रेजेंट व्हेन इनटू द ग्रेटर कंसंट्रेशन देन द two subunits of the 70s or the 80s ribosome is combined tightly। दो सब यूनिट जो कि 70s चाहे 80s के हों, वो इन आयंस के उपस्थिति में कंसंट्रेशन जो कोफिशिएंट है रिप्रेजेंटेशन करता है, अवसादन गुणांक को रिप्रेजेंट करता है, वो दो सब यूनिट तभी टाइटली या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या फिर अच्छे तरीके से एक दूसरे से बंधे होंगे जबकि ये हायर अमाउंट में होंगे। जैसे अगर इनको आइसोलेट करना होगा, इनको डिसोसिएट करना होगा, दो पार्ट्स को अलग करना होगा, तो हम यहाँ पर इनके कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे, या कंसंट्रेशन कम होगा तो ये दोनों आइसोलेट हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा कि जो कंसंट्रेशन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। या इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब इसके फंक्शन की तरफ चलेंगे। स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया, अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन पे चलते हैं। स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर और फंक्शन है बेसिकली, तो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया उसके अस्ट्रक्ट के साथ में। अब हम फंक्शन पे चलते हैं।
तो फंक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइबोसोम का फंक्शन होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। मतलब अगर जो सेल है, सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो वहां पे राइबोसोम की उपस्थिति अनिवार्य है, या कहें कि राइबोसोम के होने पर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो यहां पे आपको बताना चाहेंगे, जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, जब वहां पे न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, डीएनए के फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में। लेकिन मैंने जहां यहां पे पहले बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर जस्ट डिस्क्राइब टू द आरएनए plus protein ribosomal type of the RNA, which means that to the types of the RNA is also found in the nature, that is the rRNA, mRNA and tRNA. They are the three forms of the RNA is present, and that participate into the formation of to the protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीनों जो आरएनएज होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें, मैंने जैसा पहले बताया कि राइबोसोमल जो आरएनएज होता है, राइबोसोम जो आरएनए से बना है, आरएनए है, वो जाके साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे पाया जाता है। जबकि प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस डन होना है, तब ये पॉली राइबोसोम के फॉर्म में एक जगह पे इकट्ठा होंगे। लेकिन इसके लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इंफॉर्मेशन आता है मैसेंजर आरएनए से। मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए से मैसेज को लेगा और ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से आरएनए तक पहुंचाएगा, और वहां से तब जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, इन द अनदर वर्ड, द इंफॉर्मेशन विच आर कोडेड इन द डीएनए, दैट इज द वे formed to the protein via to the RNA. So RNA is play important role in the protein synthesis, that is the decoding to the information which coded into the DNA in the genetic process, in the natural phenomena, that is the DNA is have to the all the genes, all the informations for that to the which concern to the animal character, animal procedures, biosynthesis, degradation and synthesis, so that appearances of the characters, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल द सिंथेटिक प्रोसेस। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके लिए जो डीएनए होता है वो इन्फॉर्मेशन को कोड करता है। आप जानते हैं कि डीएनए विच आर गोज टू द इन द हेरिडिटरी characters from to the one generation to the another, that is indicating to the all the information which are goes to from to the their parent to the into the progeny, which means that to the they are the characters, functions and to the appearances look like as their ancestor, so that to the for the particular proteins in formation, the DNA which are have to the codons, which means that to the nitrogenous base is the key role take part into the protein synthesis, that is have to the informations, and that information is first of all to the into the transcription and then to the translation, which means that to the information decoded by to the RNA are the given to the site of the ribosomal RNA through the messenger RNA and to the। तो कहने का मतलब ये था कि डीएनए जो कि इंफॉर्मेशन को रखता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो ये मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचता है, और उस राइबोसोमल जो आरएनए जो डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, वहाँ पे वो पॉलीमर फॉर्म में बना लेता है, एक चैन, एक सीरीज फॉर्म में बना लेता है। तो सक्सेसिव इसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन जो प्रोसेसेस होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, बहुत ही इन डिटेल में जाना पड़ता है। ये पर्टिकुलर एक पूरा मैकेनिज्म है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लिए होता है। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंसेस होती हैं, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर्स होती हैं, और वो फैक्टर्स वो रिकमेंड करती हैं कोडांस में। कोडांस जो है 46 कोडांस भी होती हैं, तो कोडांस के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन आती है। ये
ये इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, ये कैसे होता है, कोडांस क्या होता है और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, ये हम आपको जेनेटिक्स के चैप्टर में उस समय बताएंगे। तो ये राइबोसोम का जो फंक्शन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन सिंथेसिस है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इन मैनर है। यूकैरियोट में मैंने बताया कि इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ये प्रोसीजर्स होते हैं। इस प्रोसीजर के माध्यम से ये जो है आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में ये जो 3 प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें फैक्टर पार्टिसिपेट करती हैं, एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होगा कि जो कुछ हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण फंक्शन ये भी होता है कि ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, ये प्रोटेक्शन करता है, बॉडी का प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म में ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेता है। तो ये राइबोसोम प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्शन करेगा। तो बहुत वास्ट इसके मैकेनिज्म, वास्ट इसके फंक्शनिंग नहीं होती है। इसका मोर और लेस ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनिंग जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में ही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। उस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस ये कर रहा है। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही, राइबोसोम। अगले चैप्टर में हम फिर से एक दूसरे ऑर्गेनेल के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।